नव पद में देखिए, अब कब आप किसको तब को प्राधान्यता देते हो। अब तब करके जिसकी प्राधान्यता हो तो इसके अंदर मुख्य हेतु ये समझना है यहाँ पर कि तब सबको करना अनिवार्य है। अरिहंत भगवान ने भी तप किया है, आचार्य भगवंतों ने तप तपस्या की, उपाध्याय जी महाराज ने तप तपस्या की, साधु साध्वी अनिवार्य रूप से करे, श्रावक श्राविका अनिवार्य। आप दोनों में देखेंगे आपको ये ख्याल आ जाएगा, दर्शन ज्ञान चारित्र तप, चार प्रकार के आचारों की मुख्य आराधना के अंदर जब आपको ये लक्ष्य आ जाए, दर्शन साधु साध्वी श्रावक श्राविका सबके लिए एक सरीखा, एक समान, एक माप, किसी के लिए कम ज्यादा नहीं। साधु महाराज ने श्रद्धा हो ने श्रावक ने न हो चाले न चाले, सम्यक दर्शनની શ્રદ્ધા બધાના માટે એક સરખી છે। सम्यक ज्ञान की अंदर थोड़ी सी मान मर्यादा माप आ गई। शु माप आयो? साधु साध्वी के लिए आचारंग आगम शास्त्र वगैरह सब है। अब श्रावक श्राविका आगम वाचना सुने समझे सीखे, भले ही पढ़ ना सके लेकिन वाचना सुनना समझना जरूरी है। काका मैं वर्षों पहला सूरत ચોમાસું કર્યું ત્યારે એક કાકા 75 વર્ષની ઉંમરના, ઓછું સંભળાય એટલે પાઠની પાસે જ ખુરશી લઈને બેસે। आप विचार करो, मैं इतना छोटा साधु था, 40 साल पहले की बात करो। एक काकाए कीधु कि मैं आखी जिंदगी सागरजी महाराजनी आगमनी वाचनाओं सा। आपको सुनकर हैरानी होगी, आश्चर्य इस बात का लगेगा कि उन्होंने इतने ध्यान से, इतने उपयोग पूर्वक सुनी समझी અને અવધારણ કરીને આગમ શાસ્ત્રોની વાચનાના બધા તત્વો એમને યાદ રાખ્યા। એટલું ઉપસ્થિત કે અમે બેઠા હોઈએ ને વ્યાખ્યાન વાંચતા હોઈએ ને એક રાઈના દાણા જેટલી ગલતી થાય તો તરત કહે કે સાહેબ આ આગમ શાસ્ત્રમાં તો આમ છે ને તમે કેમ આમ બોલો છો। એટલો ઉપયોગ રાખીને સાંભળ્યું હોય અને એવી સ્મૃતિથી એમને સમજ્યું હોય તો આજે એ બીજાને પણ કહી શકે કે આમાં આ તત્વ છે, આમાં આ પદાર્થ છે। એવા શ્રાવકો હતા, એવી સ્મરણ શક્તિ હતી, એવી અવધારણાની શક્તિ હતી। ભલે તમે આગમ શાસ્ત્ર ન વાંચો પણ વાચના સમજીને તત્વો સાંભળીને અવધારણ કર્યું હોય તો ઘણું બધું આપણને ઉપસ્થિત રહેશે। પણ હવે આજની તારીખમાં જો આગમના તત્વોના પદાર્થોના વ્યાખ્યાનો જ ન થાય તો તમે શું કરશો? લોકોને હા ही रट्टा मस्करी ना जोईता होय तो बख्शले, फिर उसके अंदर जोक्स टूचके मळशे। शेर शायरीओ सांभळीने शुं काम छे? આપણું વ્યાખ્યાન जिनेश्वरना તત્વનું હોય કે સમ્યક દર્શનથી શ્રદ્ધા થાય એ આપણા માટે કામ છે। કોઈક જ ક્ષેત્રો એવા હોય કે જ્યાં 12 મહિના જીન વાણી શ્રવણ કરવા મળે। અમે ત્યાં પાયધુની રહેતા હતા ગોડીજી, તો કાકા 12 મહિનાના 360 દિવસમાંથી ગોડીજી એટલે એક દિવસ વ્યાખ્યાન વાણી બંધ ન રહેશે। ટ્રસ્ટીઓ એટલા જાગૃત અને સચેત, કોઈ સાહેબ પાછા વિધાર કરવાના હોય તો સાહેબ અમને 2 દિવસ પહેલા કહેજો, અમે બીજા સાધુ સાધ્વીઓને બોલાવીને રાખીએ। અમારે ત્યાં ગોડીજીમાં એક દિવસ વ્યાખ્યાન બંધ ન રહેવું। હવે એ જમાનામાં ગોડીજીની ચારે બાજુ એટલી ભરચક વસ્તી હતી એટલે એટલા મોટા ઉપાશ્રય બનાવ્યા અને એવી જાગૃતિ રાખીને ટ્રસ્ટીઓ વ્યવસ્થા કરતા કે એક દિવસ વ્યાખ્યાન કરતા। કેટલી આરાધનાઓ થતી, કેટલા આઠમ ચૌદસના પૌષધ, કેટલા રોજે રોજની આરાધના। ભર બપોરે આવો તો લોકો સામાયિક કરતા જોવા મળે છે। આજે શું થયું? વસ્તી બધી આ બાજુ આવી ગઈ, બહાર પરાવમાં ગઈ એટલે ગોડીજીના ઉપાશ્રયો ખાલી પડી। આ પરિસ્થિતિ ઉપાશ્રયની શોભા શેનાથી છે કાકા? આરાધકો છે।
હવે આ કાકાને ક્યારે ઈચ્છા થાય કે હું બાજુમાં રહું છું તો ઉપાશ્રય જઈને એક સામાયિક કરું છું, ન કરો તો શું? એક સામાયિક કરવી હોય તો ચાલો ઉપાશ્રય જઈએ. એક કાકા કાંદીવલીની અંદર ભર બપોરે સૂતા હોય ને છોકરાઓ નીચે રમતા હોય તો એટલો ગુસ્સા આવે કે નીચે જઈને બે છોકરાઓ પકડીને થપ્પડ મારે છે. એટલે એમના શ્રાવિકા કે તમે આ છોકરાઓ રમે ત્યારે ઉપાશ્રય જઈને સામાયિક કરો ને મહારાજ પાસે. પણ હવે સંસ્કાર જ ના પડ્યા એટલે એક દિવસ સામાયિક જ. હવે રિટાયર થઈ ગયા ને ઉંમર થઈ ગઈ એટલે ઘરડા ઘરમાં હોય એટલે હવે આખો દિવસ ઊંઘે તો ઊંઘ ક્યાંથી આવે? એટલે ગુસ્સો એટલો આવે કે બસ છોકરાઓને જે છે એ રમવા જ ના દે, મારે છે. હવે છોકરાઓ રમે એટલે આઉટ થયા તો હું બૂમો તો પાડવાના જ. अब करो तो क्या करवा? पहले से संस्कार नहीं होंगे तो आप सामायिक व्रत वृत्ति में भाव नहीं कर. आज जुदो धर्म छे, आज जुदो धर्म छे. दो के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा हिसाब देखो आप. अब भी मैंने कहा कि ज्ञान के क्षेत्र के अंदर मर्यादा है कि आगम शास्त्रों पूरतो अधिकार जे छे साधु साथ, पण आगम सिवाय કેટલું સાહિત્ય છે આપણી પાસે, વિશાળ સાહિત્ય છે. પણ આજે કોઈ વાંચતું નથી, કોઈ અભ્યાસ નથી કરતા, કોઈ જ્ઞાન ભંડાર લાઇબ્રેરીમાંથી ચોપડી બહાર નથી. હવે વાંચવા કરવાનું ઓછું થયું. આ બાજુ તપ ધર્મ, આ બેની અંદર હિસાબ કરો સમજાય તો શું થયું કે તપ ધર્મ અને આ બાજુ દર્શન ધર્મ, આ બંને ધર્મ સાધુ સાધ્વીને શ્રાવક સારખાને એક સરખા પ્રમાણમાં છે. કોઈના માટે કોઈ વસ્તુ ઓછી વધતી નથી. आपको भी साधु साध्वी को भी सम्यक दर्शन श्रद्धा इतनी रखनी है, श्रावक श्राविका को भी सम्यक दर्शन श्रद्धा इतनी पूरी रखनी. साधु साध्वी ने बधी तप तपस्या आराधना, श्रावक श्राविका को सब प्रकार की तप तपस्या आराधना एक साथ. ऐसा तो नहीं है कि भी 180 उपास साधु महाराज ही कर सकते हैं, श्रावक श्राविका नहीं कर सकते. ऐसा तो नहीं है कि भी मास कमंड साधु साध्वी कर सकते हैं, श्रावक श्राविका नहीं करते हैं. ऐसा कुछ सबके लिए एक समान व्यवस्था, कारण के तब निर्जरा कारक है, इसमें आप मर्यादा नहीं कर सकते. तो सबको एक सरी की तपस्या करनी अनिवार्य. अभी तप थी जेने जे प्रमाण में निर्जरा करवी होय करे. ख्याल आयो काका? आ सम्यक दर्शन श्रद्धा थी आत्माना भावो पुष्ट करो, ज्ञान थी पदार्थों ने तत्वों स्वरूप जानो, चारित्र थी आचरण करीने संवर में रो जेथी नवा पाप कर्म न लागे, तप थी कर्म खपावीने निजरा करीने आत्मा ने चुको. થઈ ગઈ વાત? બોલો, ચારે ચાર બોલો. अच्छा, હવે ચૂપ રહ્યા, મૌન રહ્યા. માજી જાગો કે પેલી સાડી વાળી આરામથી ઊંઘાઈ રહ્યા. આતરા ઉપર ચડ્યા ને પછી બોલો. આ માજી તો બોલશે જ નહીં, ચોખ્ખી પહેલા જ ના. દર્શનથી શું કરવાનું? सम्यक दर्शन से श्रद्धा बढ़ा करके आत्मा के भावों को विकसित करें. ज्ञान थी शू करवानु? पदार्थों और तत्वों को जान करके सत्य समझते जाओ. ज्ञान समझवा माटे, जानवा माटे ज. एना माटे ज व्याख्यान. व्याख्यान में ज्ञान शू छे? व्याख्यान एक ज्ञानाचार छे, अभ्यास है. चारित्र में सामायिक औषध व्रत वृत्ति करता करता संवर, संवर मतलब नए आने वाले पापों को रोक सके. बस इतनी सी बात है. હવે બોલો, તપથી શું કરવાનું? જૂના ભેગા થયેલા સંચિત કર્મોને ખપાવવા માટે તપ છે. એટલી સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે પરમાત્માએ, એટલી અદ્ભુત વ્યવસ્થા આપી દીધી
કે આપણે એનાથી એ કરતા करता आत्मा ने चोखो करता चाहिए। जितने प्रमाण में आप कर्म क्षय कर सको उतने प्रमाण में आत्मा की शुद्धि कर। आंबिलनी होली आ दिवसों एक तरफ आत्म शुद्धि, बीजी तरफ अंदर थी शरीर नी रक्त शुद्धि। शरीर नी शुद्धि करो, रक्त शुद्धि प्रमाण में करो। रक्त शुद्धि एटले शुं? आ सीजन में शरीर नी अंदर पित्त ब्लड में वधारे भळे। पित्त વધે એ પિત્ત જે છે બગડે અને લોહીમાં ભરે એટલે બધી બીમારીઓ પિત્તજન્ય વિકારો શરૂ થાય છે। હવે આમાંથી જો બચવું હોય તો શું કરવું? એટલે આહારમાંથી તેલ મરચું મીઠું કાઢી નાખ્યું એટલે આંબીલની હોલી આ સિઝનમાં આવે। શરદ શારદી ઋતુ જે છે એમાં જ આવે છે। હવે જો એ એટલી સરસ વ્યવસ્થા છે, આ દિવસોમાં હોળી આવે, ચૈત્ર માસમાં હોળી આવે ત્યારે ઋતુ પરિવર્તનનો સમય એ વખતે વસંત ઋતુ, આ વખતે શારદ। રોગની બીમારીઓની ઘર છે આ ઋતુ। જે લોકો આ ઋતુમાં વ્યવસ્થિત રીતે વિવેક રાખીને આહાર પાણીમાં શુદ્ધિ રાખી શકે તો બીમાર જ ન। माजी सुनिए, इस ऋतु में दही सबसे खतरनाक जहर होता है। इस ऋतु में मेथी नहीं खाई जाती। इस ऋतु के अंदर पित्त वर्धक कोई वस्तु नहीं खानी। दही ठंडा नहीं है, दही गर्म है। थोड़ा दिमाग में स्क्रू बदलो माजी। दूध जो है वो फायदा कर सकता है, लेकिन कौन सा दूध? जिस गाय का दूध होना चाहिए, भैंस का नहीं और किसी का नहीं। गाय में पण कई गाय, आप लोग सब गाय गाय बोलते हो, लेकिन सिर्फ गिर गाय या देशी गाय, लेकिन अब मिलने वाला नहीं। 100 रुपया लीटर आपो तोय मले, तो शू करशो? अब इस ऋतु में गिर गाय के देशी दूध में 1 चम्मच देशी घी 10 मिनट तक टाइम देखकर हिलाते रहना, वो पीना। और बन सके तो सौंफ डाल के पियो तो पित्त मिटता है। सौंफ वरियाली સૌથી સારામાં સારી દવા છે। કાલે પારણું થાય એટલે સૂર પીપરામૂળ ન ખાતા, જીરું વરિયાળી ને ધાણા। लेकिन अब ये किसी को समझ ही नहीं। पारणुं એટલે હોંઠ પીપરામૂળની ગોળી જોઈએ, કોઈ भी बोल मूंगरी दादरा भजिया तो सही जैसे। હવે આ પરિસ્થિતિ આવી ત્યાં શું? इस ऋतु में कुछ भी तला हुआ भुना हुआ कुछ भी खाया तो पित्त बढ़े। हाँ, હવે સમજા। માજીને હોનાની ચેન આપવા જેવી છે, સમજદાર છે। आप विपरीत न करें। विपरीत मतलब क्या? ऋतु विपरीत आहार रोग बीमारी बढ़ाता है। काल विरुद्ध आहार रोग बीमारी बढ़ाता है। गुण धर्मों से विरुद्ध आहार बीमारी बढ़ाएगा। એટલે ટમાટર ને કાકડી ભેગા ન ખવાય। ટમાટર ગેસ ઉપર ચૂલે ન ચढ़े। आंवला गैस ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। आंवला में हाई परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। जो तमे गैस ऊपर चूल्हे चढ़ावीने गरम करो तो बधुं नष्ट थई जाय। विरुद्ध नहीं करवो। इस ऋतु में सबसे बढ़िया है करेला की सब्जी, लेकिन करेला की सब्जी में नमक मिर्ची नहीं डालना, जीरा सौंफ डाल करके उसको घी में बघार के। तो ये ऋतु की दवाई है। आयुर्वेद शास्त्र ने क्या किया है? आहार को ही औषधि के रूप में उपयोग करने का एक अच्छा प्लानिंग दिया। दवाई लेनी ना पड़े। नहीं नहीं नहीं, गलती मत करो। अबे आ ऋतु नहीं, कदी नौकड़ी माक्षर महीने पोष महीने 1 टेमरो काली मिर्च डालो। अब काली मिर्च ये 2 महीना नहीं था। अब इस 2 महीने के अंदर जीरा सौंफ वरियाली जेने कहेवाय छे अने खास करीने धाणा, ख्याल है, ये इस ऋतु के लिए सबसे बढ़िया दवाई। हाँ देखो माँ जी, अब नमक आया तो पित्त बढ़ेगा।
पहले ये ध्यान में रखो, नमक, मिर्ची और कोई भी जात का नमक और तेल तले ये पित्त बढ़ाने वाले। शक्कर सबसे खराब पित्त बढ़ाती है, सोडा खारा सबसे खतरनाक पित्त बढ़ाता है। आज जो ये नहीं समझा तुमने, ऋतुचर्या, दिनचर्या अलग है, रात्रिचर्या अलग है, ऋतुचर्या अलग। ऋतुचर्या એટલે શું? આ 2 મહિનાની ઋતુમાં શું ખાવું અને શું ન ખાવું એનો વિવેક છે। दिनचर्या मतलब दिन में क्या खाना क्या नहीं खाना। इस ऋतु में दिन में सोने वाले को भी पित्त बढ़ता है, कंपल्सरी जन्मती रहे ऐसा। शरीर बनाए किसका है? वात, पित्त और कफ। शरीर के अंदर वायु बना हुआ पित्त रहता है, कफ है, इसके सिवाय शरीर बनता ही नहीं है, कंपल्सरी है। लेकिन कितना चाहिए? आपके शरीर में 30 ग्राम पित्त चाहिए, और वो अगर हो जाए 300 ग्राम हो जाए तो क्या करो? वैसा हटे 30 ग्राम चाहिए और वो हो जाए 300 ग्राम हो जाए तो क्या करेंगे आप? तो फिर वो जो है और ज्यादा नुकसान करेगा। मानस से 24 કલાકની અંદર 3 ગ્રામથી મેક્સિમમ 5 ગ્રામ મીઠું। 24 કલાકની વાત કરું, આખા દિવસ સવારમાં ઉઠો એટલે તમે વજન કરીને 3 ગ્રામ के 5 ग्राम दो निकाल लो अलग। अब 24 घंटे में जितना नमक आए उसमें ये पूरा होना चाहिए। तो मैं तुम्हारा 3 ग्राम तो खाली मुरमुरा खाने में पूरा हो जाता है, बाकी सब तो अलग। तो 30 ग्राम आप खा रहे हो। अब 30 ग्राम खा रहे हो तो परिणाम ये आएगा कि आपकी दोनों किडनी 24 घंटे नहीं 100 घंटे काम करे तो भी 3 ग्राम नमक पेशाब में बाहर नहीं फेंक सकते। अब क्या करो आप? इस सीजन के अंदर देशी गुड़ का पानी पीना सबसे अच्छा औषध है, आप जिससे जो है पित्त का शमन कर सको ऐसा। पहले सबसे ज्यादा अच्छा हुआ है अनंत भाषा समझाओ। एक काले अमिलरा पारणा में जो है कोई करीब भगवान जाने मैं अनोरे हाथ में है कि नहीं वही मंठान इतर मूंगरी दाल रो हीरो ने मूंगरी दाल रा भजिया तेल मरसारी वा लाल लाल चटनी अनोरे फिक्स है नहीं हमरे कोने ने मोने को। अब उसके कारण और परिस्थितियां बिगड़ गई। और अब आ गई दिवाली। अब दिवाली आने वाली है, सब जगह पर मिठाई मिठाई मिठाई, पागलपन चलेगा। बाजार की मिठाइयों के अंदर माजी ब्लॉटिंग पेपर नाम सांभळ्યું છે? स्कूल में आता तेरे ब्लॉटिंग पेपर को 3-3 दिन तक पानी में भिगो के रखो। 100 पेपर नी थप्पी लेवानी, एक बड़े टोप के अंदर पानी में भिगो के रखो, तीसरे दिन मिक्सर घुमा दो, मावो થઈ ગયો। ब्लॉटिंग पेपर मतलब खबर छे माजे शाही सोफवान पेपर। अबे इंक तो गई, अब बॉल पेन आ गई, तो पेपर फैक्ट्री वाले बंद तो नहीं हुए। फिर पेपर फैक्ट्री वाला धंधो खूब बढ़ी गया। जितने ब्लॉटिंग पेपर की फैक्ट्रियां बनती है वो जाकर के मिठाई की दुकान वाले खरीदते, 100-100 किलो 1000-1000 किलो आ दिवाली में लावे। 3-3 दिवस पानी में पलाड़ी राखवा ने पछी दूध नाखीने पानी नाखीने कलर नाखीने मिक्सर में फेरवी दो, एमा साकर ने सेकेरी नाखी दो, आ थई गयो माવો। पछी थोड़ो दूध नाखीने हलावीने लोकोने बर्फी ने कलाकंद करीने खवડાવે। કેટલા રૂપિયા કિલો? ब्लॉटिंग पेपर आवे छे माजी 10 रुपया नु 20 रुपया। अब 10-20 रुपए के पेपर का 1000 रुपए ले। सेकेरिन અત્યારે खूब खतरनाक चाले छे। शक्कर और शक्कर के साथ में ऐसे अब केमिकल की स्वीटनर बने, अभी वो डाल करके खिलाते। अब उसमें कलर तो आएगा ही है। सब मिठाइयों में 3-3 जात के कलर है। ये कलर केमिकल कलर इतने खतरनाक है कि काका आ कलर कैंसर करे और ये शक्कर आपको डायबिटीज। न्यामती વધારે मिठाई कौन खाए सर? बोलो हिंदुस्तान के अंदर
140 करोड़ लोगों की आबादी में सबसे ज्यादा मिठाई कौन? चलो जे होय ते। अब आप ये देखो, आज भी पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करवा जाओ तो डायबिटीज ना સૌથી વધારે લોકો કયા સમાજમાં છે? તમારે ત્યાં કામ કરવા વાળી બાઈ આવે છે, એમને પૂછજો એમના ઘરમાં એક કે ને ડાયાબિટીસ ના હોય ને શેઠાણી કોઈ દાડો હાજર થાય નહીં. આખી जिंदगी डॉक्टर ना चक्कर का. ऐसी परिस्थिति के अंदर ऋतु और ऋतुचर्या का ज्ञान, ऋतुचर्या साथे वस्तु आहार विज्ञान जो जोड़ा गया है, किस ऋतु में आपको क्या था? સૌથી સરસ મજામાં અત્યારે લીલા આમળા તમને મળશે. ग्रीन आंवले मिलेंगे. ग्रीन आंवले का रस निकाल के मत पियो. ग्रीन आंवले का जो फाइबर्स है वो 10 गुना फायदा है. आप कद्दूकस करके उसको शाक सब्जी में डाल के खाओ. आप रस निकाल के पी करके कचरा फेंकने की बात गलती मत करो. उसी से तो आज च्यवनप्राश बना रहे. डाबर कंपनी या दुनिया की ऐसी कंपनियां हैं जो आंवले का तो नाम निशान नहीं होता है और च्यवनप्राश का बिजनेस का तुमने खबर नहीं है. 100 करोड़ 100 करोड़ फिर भी नहीं रहते. सिंघाड़ा पीस करके पाउडर करके सुखा करके आटा बनाकर डालते. आंवला मिलेगा 40 50 80 रुपए किलो और ये मिलता है 20 रुपए किलो. इसको सुखा करके आटा बना के डाल. इतना खतरनाक खेल चल रहा है. शक्कर भर दो उसके अंदर और इतने शक्कर और मिला करके जे वस्तु कदाच 40 रुपया में न पड़े ने 400 रुपया किलो में बेच. ये खतरनाक खेल चल रहा है. हर महिलाओं को समझदारी से कल से बाजार में से आंवला रोज 1 किलो लाओ, घर के अंदर कद्दूकस करके छाया में सुखाओ. धूप में मत रखना. 4 दिन के अंदर छाया में सूख जाए, पीस के पाउडर बना के रख लो. 12 महीना चाले એટલું તમારા ઘર પૂરતું પાવડર 10 કિલો બનાવી. દરરોજ છોકરાઓને કે ગમે એને જેને એસિડિટી હોય એને જીરું વરિયાળી ને આમલા મિક્સ કરીને જે છે ગોળના પાણીમાં પીવડાવો. कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं. 2 महीने ये सीजन अगर आपने निकाल दी तो बहुत फायदा. यूरिक एसिड किसका रोग है माटी? यूरिक एसिड पित्त का प्रकोप है. ख्याल है कि नहीं? ये बीमारी समझो पहले. स्किन डिजीज सभी जो होते हैं पित्तना प्रकोप है. एसिडिटी એટલે પિત્તનો પ્રકોપ છે. अब ये आपकी समझ में आया तो ठीक, नहीं तो भगवान भरोसे. ઓલી કરતા વાંધો નથી આવતો પણ પારનું કરીને બગાડનાર ગણાય. પર્યુષણના પારના બગાડનારા હિન્દુસ્તાનના મોટું લિસ્ટ છે. ઘણા લોકોએ પર્યુષણના પારના બગાડ્યા. આજ દિવસ સુધી મહિના દિવસ સુધી તબિયત સારી નથી. આમાં હવે કાગળ કાઢે છે पीली साड़ी वाला. अब एक कागज बैग में से निकाल दे. अब आप विचार कर लो, नवपद की आराधना में तप धर्म है. अब ये तप आपके लिए कौन सा तप कैसा हो और कैसे आप कर्म निजरा कर सकते, कैसे कर्म. मात्र आहार आहार नहीं, आहार का संयम तप है. आहार का त्याग और आहार का संयम दो अलग अलग वस्तु है, तो दोनों का हिसाब करो. आहार का संयम कंट्रोल है. तो वो कैसे तप बना? आहार करते हुए भी तप और आहार का त्याग करके भी तप. दोनों तरफ से समझाया. आप इधर देखिए, मोक्ष में गए कौन कौन गए? अरिहंत भगवान मोक्ष में गए, आचार्य महाराज मोक्ष में गए, उपाध्याय जी महाराज मोक्ष में गए, साधु साध्वी जी मोक्ष में गए. एक भी कोई बिना तप किए मोक्ष में गए क्या? एक भी भूतकाल के अनंत काल में एक जन ने पण बोल खाई पीने मोक्षे गया होय एवा कौन? शास्त्र में आप लोग पूजा पढ़ाते हो ना, खावत पीवत मोक्ष जे माने ते सरदार बहु जट माने. मैं खाते पीते मोक्ष प्राप्त कर लूंगा ऐसे बोलने वाले मूर्ख के सरदार. मैं थोड़ी इतिहास की बात करता हूं. महावीर स्वामी के भी पहले
पार्श्वनाथ भगवान जो हुए तो पार्श्वनाथ भगवान की पाठ परंपरा में उनके शिष्य के प्रशिष्य होने वाले गौतम बुद्ध। आज का बौद्ध धर्म जो है उसकी बात कर रहा हूं। ये आज का बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जो थे वो पहले पार्श्वनाथ भगवान के साधुओं के पास दीक्षा लेकर के साधु बने, जैन साधु बने। अब उनकी आहार की संज्ञा समझो कि जो समझो, वो बोलते मैं तप नहीं कर सकता, मैं तप नहीं कर सकता। अब पूरे समुदाय में से और 4-6 जने उनके विचार वाले इकट्ठे हो गए, बोले तप नहीं करना है, तप छोड़ दो, तप नहीं करना है, तप छोड़। तप करने से क्या होता है, हम तो खाते पीते मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ऐसी बातें बहुत बहुत। उन्होंने 6 साधुओं ने मिल करके बिल्कुल जो है साधु जीवन का ही त्याग कर दिया। मिल करके प्लानिंग बना करके से 6 साधु निकल गए। अब निकल तो गए, उन्होंने जा करके दूसरी बातें बनानी शुरू कर दी। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते तब धर्म का त्याग करके उसको छोड़ दो, आप जो मिले सो खाओ पियो। जिस देश में जहां गए तो अंडे मिले तो अंडे खाए, मांस मिला तो मांस खाए। वो बोलते हमने तो मारा नहीं। हमने कहा मारा ऐसा। आपको सुनकर हैरानी होगी, गौतम बुद्ध की मृत्यु भी सुअर का मांस खा के हुई। ऐसी स्थिति बनी। अब आज भी ये कलयुग चल रहा है। आज भी जो आपको गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म मानने वाले, भगवा वेश वाले ऐसे साधु साध्वी आप बहुत देखें, बहुत देखें। उनके वहां पर मांस भी वर्ज्य नहीं, अंडे भी वर्ज्य नहीं है। दीक्षा दीक्षा ही कहते हैं कि हमने भी संसार छोड़ा है, दीक्षा लिए, साधु बने। करना क्या, विचार कर लो आप, करना क्या। इसलिए जीवन के अंदर जिसकी मुख्य बात की जाए कि ऐसा तप धर्म, चलो महावीर स्वामी ने तो किया। आपको आश्चर्य होगा, 24 तीर्थंकर भगवंतो માં સૌથી વધારેમાં વધારે તપસ્યા કોઈએ કરી હોય તો મહાવીર સ્વામી। 24 तीर्थंकर ભગવંતોના પૂર્વ ભવોમાં જેટલા ભવ થયા હોય એમાં સૌથી ઉત્કૃષ્ટ વધુમાં વધુ તપસ્યા કોઈએ કરી હોય તો મહાવીર સ્વામીની આત્મા એમના જીવે કરી છે। કેટલી તપસ્યા ક્યારે ક્યારે કરી, વિચાર કરો। 16મા ભવની અંદર વિશ્વભૂતિ રાજકુમાર થઈને માસ્કમણના પારને માસ્કમણ કર્યું। ત્યાર પછી 22મા ભવે જે તપસ્યા કરી, 23મા ભવે જે તપસ્યા કરી, 25મા ભવે અને 27। કેટલા થયા કાકા? ગણો ગણો તો ખરા। माझे जागे तो खतरा हुआ। अब 5 भवों में इनकी तपस्या का हिसाब निकाल। 22મા ભવમાં વિમલ રાજકુમાર તરીકે एक पल्योपमનો आयुष्य છે, समझा गया। अब इतने लंबे काल तक इतनी तपस्या करना, इतनी बड़ी तपस्या की, समझेगा। और वो भी फिर बाद में चारित्र कौटिल आचार्य के पास दीक्षा लेकर साधु जीवन में कर। कब कितनी तपस्या की और उनके जीवन में इतनी तपस्या। अब आप सोच लो कि 20 स्थानक के लिए तपस्या चाहिए कितनी? 20 होली। एक एक होली के आंबेल उपवास करो तो कितने? 400। इसकी जगह पर 25वें भव में नंदन राजर्षि के समय में 11,80,645 मास कमण। अब इतना उपवास की जरूरत नहोती, लेकिन अब उनको करनी थी। तो जितनी तीर्थंकर नाम कर्म के उपार्जन में कई वो एमना सिवायना बाकीना एटला कर्म खपावा माटे
अब आगे की सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, धक्का नहीं लगना चाहिए किसी को। इतनी तपस्या करने के बाद भी इतने कर्मों का क्षय नहीं हुआ, इसका मतलब इतने कर्म भारी थे, इतने कर्म भारी थे। સૌથી વધારે ઉપસર્ગો પણ એમને थे, सबसे ज्यादा उपसर्ग भी इसको। ऐसी क्या परिस्थिति बनी, ऐसी क्या नौबत बनी, आप सोचिए। तो इतनी तपस्या करके भी निर्जरा नहीं हो सकती है। मैणा श्रीपाल के जीवन में आप देखते जाइए। अब आखिर तब तो किसको कितने प्रमाण में करना है कि कैसे आपके कर्मों का क्षय हो, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर ये तप धर्म दोनों प्रकार का अलग अलग करना। अब ये बाह्य तप भी जो है इन्होंने 6 प्रकार का रखा, और साथ में जोड़ दिया कि आभ्यंतर तप जो है वो भी 6 प्रकार का रखा। अब बाह्य तप के अंदर एक तप तो आपको दिया है अनशन का। अनशन का सीधा अर्थ है उपवास। अब आप एक तरफ अनशन करते जाओ, अगर नहीं होता है उनोदरी करते जाओ। अब उनोदरी के अंदर कम खाना, ये भी तप आया। अब ये आया वृत्ति संक्षेप, आप मिनिमम आइटम से तप करो। आप इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा के लिए उपवास तो नहीं कर सकता हूं, भाई कोई भी नहीं कर सकेगा। कायम कौन उपवास करेगा? ठीक है, कोई हरकत नहीं, खाओ तो भी कम खाओ कि जिसके कारण आपके परिणाम वैसे आहार के लिए तीव्र न बने। भाई आप 4 रोटी खाओ तो 3.5, चाह करके भी उसके प्रति मुझे इतना तो छोड़ना है, एक अंदर से हेतु बनना चाहिए। और इससे ज्यादा आगे बढ़कर रस त्याग जे। अब ये आयंबिल जो है किसमें गिना जाता है? आप बन्ने में गणवो के खाली रस त्याग में। बोलो माजी, क्या મૂકીને આયા? આજે કોફી ઘરે મૂકીને આયા? હારું છે, હવે ઉંમર થાય ભૂલવું નહીં બહુ। रस त्याग का और वृत्ति संक्षेप वे में फर्क शू छे? आइटम कम करना ये है वृत्ति संक्षेप, और स्वाद घटाना, कम करना या त्याग करना, इसका नाम रस है। इसको हमने व्यवहार भाषा में आयंबिल नाम दिया। व्यवहार भाषा में आपने आयंबिल इसलिए रखा कि अब उसमें कोई रस नहीं है, लेकिन इसको दोनों के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब क्या स्पर्धा चलिए, कंपटीशन चलिए, मैक्सिमम आइटम, और महावीर स्वामी कह रहे हैं मिनिमम आइटम। आयुर्वेद शास्त्र कह रहा है एट ए टाइम मिनिमम आइटम। थाली में कम से कम 5 वस्तु से आप अगर करते हो तो आपके लिए फायदा। पेट एक है अंदर, आपके पास आइटम पर ज्यादा है, पेट एक ही है, जा करके सब अंदर एक जगह इकट्ठा होने वाला है। अब वो जाकर के एक इकट्ठा होगा, उसमें विरुद्ध गुणधर्म वालों के कारण बात पित्त कब बिगड़ेगा। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र ने भी नियम बनाया कि हर एक व्यक्ति को पहले शरीर शास्त्र समझ लेना चाहिए कि पेट अंदर एक ही है, मैं सब इकट्ठा करूं कि न करूं। दूध पाक पीवू छे ने पाछल श्रीखंड खाऊ छे, दूध पाक पीना और पीछे कढ़ी पीना, ऐसा। अब ये नुकसान करता है, लेकिन अब जिनको समझ नहीं है कि साहब मैं पहला दूध पाक पीधू ने छेल्ले खीचड़ी कढ़ी खाई ले, હવે શું કરવું? अब पहला ने छेल्ला आपके लिए घड़ी के हिसाब से पहला ने छेल्ला, अंदर जाकर के पेट एक है, एक पेट में इकट्ठा होके सब मिलिंग होगा, तब जाकर के पाचन शुरू। आप ये मत सोचो कि पहले दूध पाक पी लिया, पहले दूध पाक पच जाएगा, लास्ट में खिचड़ी खाई तो बाद में लास्ट में खिचड़ी पचेगी, ऐसा नहीं। एक साथ मिक्सर में सब इकट्ठा होता है। अब उसमें से जो विरुद्ध गुणधर्म वाले एक दूसरे से विरुद्ध होंगे,
वो बीमारी करें। क्या बीमारी करेंगे? पहले पित्त बढ़ाएंगे, पहले पित्त बढ़ाए। अब वो जो पित्त बढ़ा है उसने ज्यादा बढ़ा हुआ पित्त बिगड़ने के कारण ब्लड में आ गया। जितना पित्त दोनों किडनी फिल्टर करके पेशाब में बाहर न फेंक सके, वो आपके यूरिन में जो है अगर ब्लड में आ जाए तो फिर क्या करें? किडनी का काम है लेकिन उसके कैपेसिटी के बाहर जा रहा है। किडनी नो काम कैपेसिटी 10 ग्राम तक की भी नहीं है, और अगर आपने 50 ग्राम खा लिया तो कहाँ जाएगा? बहुत तकलीफ पड़ती है। सौथी વધારે तकलीफ कोने पड़े? लीवर में। स्किन डिजीज हुआ मतलब पहले समझ लो लीवर खराब। स्किन डिजीज हुआ मतलब पहले समझ लो किडनी इतना काम नहीं कर रही है, तब जाकर ये बीमारियां बनी। अब यहाँ पर क्या है? आयम बिल के अंदर अनाज और कठोल दो ही चीज रखे। एट ए टाइम एक अनाज एक कठोल का कॉम्बिनेशन करके खाना है। मूंग की दाल के साथ ही चावल का कॉम्बिनेशन बैठता है। मूंग की छिलके वाली दाल के साथ ही जवारी का कॉम्बिनेशन मतलब तालमेल अच्छा बैठता है। जवारी ठंडी है, गेहूं गर्म है। जवारी ठंडी है, बाजरा गर्म है। इस ऋतु में बाजरा नहीं खाते हैं। बाजरा खाएंगे आप बिल्कुल मागशर महीने में खाएंगे। इस ऋतु में जवारी होनी। जवारी जो है वो आपके लिए पित्त का शमन करती है। बाजरा पित्त बढ़ा देगा, ये ध्यान रखना है। किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन सही बैठना है, ये अगर सही ढंग से बना करके खाओ। देशी शाली, शाली मतलब पुराना चावल, लाल मुंह वाला चावल या ब्राउन राइस, उसके सिवाय दो के सिवाय तीसरा चावल घर में ही नहीं आना चाहिए। और बासमती सबसे खतरनाक है, भूल से घर में ही नहीं आना चाहिए बासमती। आप समझो कि मेहमान आ गए उसके लिए रखो। हाँ, वो रेड राइस, वो रेड राइस आपका सुबह उठ करके भिगो के रखो, 12 बजे बना। 6 घंटे भिगो के रहना चाहिए। इस ऋतु के अंदर आपको ऐसा चावल दूध में, गाय के, गिर गाय के देशी दूध में मिलाकर खीर बना करके। लेकिन आज पूनम है, आज ग्रहण है, कोई खाने पीने की वस्तु खुली मत रखना, बाहर मत रखना, ऊपर चांदनी में मत रखना, टेरेस पर मत रखना। रात को खिड़की दरवाजे बंद करके सोना। आज का ग्रहण बहुत खतरनाक ग्रहण है। गई અમાસે ગ્રહણ થયું તો હિન્દુસ્તાનમાં દેખાણું નથી, परंतु आज का ग्रहण पूरे हिंदुस्तान में दिखने वाला, होने वाला है रात को। लेकिन 4:40 के बाद सूतक काल शुरू होता है। ग्रहणों की अशुभ किरणें अशुभ असर जरूर फैलाती है। मानना न मानने का अपनी मर्जी का सवाल नहीं आता है, इसके अंदर शास्त्र के नियम चलते हैं, बस बात इतनी। जो ज्योतिष शास्त्र का जैसा नियम बना है वो देख आ रहा है ख्याल में। तो एमा पानी पण न पीवाए, ख्याल आयो भाई? पानी खुला पड़ा रहे, पानी के ऊपर किरणें पड़े, ऐसी स्थिति के अंदर खाना पीना हमारे यहाँ वर्ज्य रहता है। ग्रहण काल में खाना पीना भी नहीं चाहिए, तो क्या करना? ग्रहण काल के अंदर जाप ज्यादा करना। चंद्र प्रभु भगवान का नाम, उनका मंत्र અને ચંદ્ર ગ્રહણ, આ કાલની અંદર ચંદ્ર પ્રભુના નામનું મંત્ર જાપ કરો। नवकार मंत्र का गिनो, 9 का जाप करो। जाप करने में आपको कोई दोष नहीं, ये ख्याल रखना है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर ये लक्ष्य हमारा बन जाए तो काम, પણ ઘણાને જે છે આ લક્ષ્ય નથી, એટલા માટે ઘણાને તકલીફ થાય છે। क्या करेंगे आप? कैसे करना? ग्रहण काल के अंदर कई चीजें जो है आयुर्वेद शास्त्र ने नियम से समझाई। ख्याल है, जब आयुर्वेद शास्त्र का अभ्यास करो तो आपको ख्याल, ये ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से
तो हमको दोष दूसर नहीं लगना चाहिए। बात इतनी सी, आरोग्य के लिए घातक नुकसान कारक हो जाता है, वो भी आप समझ, दोनों बात का ध्यान। इधर क्या दिया है, तप शरीर के लिए नहीं है, आत्मा के लिए। क्यों? कर्म क्षय, कर्म शरीर पर नहीं है, कर्म सिर्फ आत्मा पर है। પણ તમને બે બાજુ ફાયદો છે। જે તપ તમે આત્માના માટે કરો એમાં આહારનો વિવેક અને સંયમ રાખો તો શરીરને પણ એટલો જ ફાયદો છે, 10 ગણો ફાયદો છે। किसी को कोई भी बीमारी हो तो पहले डायग्नोसिस करके वात पित्त कफ में से कौन सी बीमारी है, ये रूट कॉज में से अगर आपने वो बीमारी दूर करने की कोशिश की तो आपका फायदा जो है मूल रोग तक भी पहुंच जाएगा। कोई भी रोग हो शरीर में, रूट में जाकर के वात पित्त कफ तीन को पकड़। आ ऋतु कोनी छे, पित्तनी ऋतु। હવે જો કોઈ દહીં વડા કરીને ખાય તો મૂર્ખાઈ કહેવાય। હવે જો એની અંદર જે છે મસાલો નાખીને ગરમ ચાય પીએ તો સમજી લેવું ખતરનાક नुकसान છે। ये गलती मत करना। तो सबके साथ बात बैठानी चाहिए था। अब जैसे आपने इधर ये तप लिया, इसके सामने जो है प्रायश्चित आभ्यंतर तप है, विनय आभ्यंतर तप है, वैयावच आभ्यंतर तप है, स्वाध्याय आभ्यंतर तप। अब इधर देखिए, आप ये पेपर 50 मार्क का रखो और इधर ये पेपर दूसरा आपका 50 मार्क। अब दोनों के अंदर ये अगर आपका प्रैक्टिकल है तो ये थियोरेटिकल, इसको बताओ। बोलो अब 100 मार्क के पेपर में से आपको कितना नंबर मिले? दोनों ही कंपल्सरी है। बहुत से लोग उपवास करके घर जाके सो जाएंगे, कई स्वाध्याय नहीं ने सामायिक। अब क्या करना? तो वो फिर अपने नेचरा इतने ज्यादा प्रतिशत नहीं कर सकते। अगर कर्म क्षय का लक्ष्य है और करना, बिना कर्म क्षय किए मतलब नहीं रहेगा। तो तप करने के पहले तो लक्ष्य बता। अब ये व्यवहार में है और ये अंतर आत्मा में है। आना पचखान रोज ना होय छे बाह्य तपना, क्योंकि बाह्य तप आपके आहार के साथ जुड़ा है, आहार के साथ पचखान जोड़ा है। नहीं तो मानस हाथ दिवस हालता फरता खातो। કેટલાય લોકોના મોઢા 24 કલાક બંધ જ ના, કેટલાય લોકોને આખો દિવસ કંઈક મોઢું હાલવું જ જોઈએ, કેટલાક લોકોને મોઢામાં કંઈક રહે તો જ એમને જે છે ગમે છે। ये सब क्या करता है? ये सब आपको तिर्यंच गति में दूसरा जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। ऐसी संज्ञा वाले जीव वो जाएंगे तिर्यंच गति। आहार पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, आहार पर कोई संयम ही नहीं है। एमा भली पाछू अशाता वेदनीय कर्म नो उदय होए तो थोड़ी वारे आ खाओ, थोड़ी वारे आ खाओ, थोड़ी बार में ये खाओ, थोड़ी देर। जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही आपकी रोग बीमारियां बढ़े। अगर आपने रोग बीमारी के लिए उपवास का नियंत्रण नहीं दिया तो फिर नुकसान। एक दाड़ो उपवास करी लो, बीजा दिवसे वॉमिट करीने पित्त काढ़ी नाखो, 6 महीने से जितना पित्त नहीं निकलता है, दवाइयों से नहीं दबता है, 10 मिनट में पानी पीकर वॉमिट करके पित्त निकाल। उपवास आत्मा के लिए हो गया कर्म क्षय कारक। दूसरे दिन सुबह पारणा नहीं करना तो बनेगा। पित्त ना टाइम कौन सा है? 11 से 12 का है। पारणा नो टाइम क्यों छे? हवार में वहेलू छे। फिर पारणा करने के बाद पित्त नहीं निकाला जाता है। जेने पारणु करवू होय पित्त प्रकृति वाला ने 11 बजे तक कुछ भी मुंह में नहीं डाल। 60 बोरसी का पचखान, 60 बोरसी के पचखान के टाइम 11 से 12 के बीच में बैठ के 4 गिलास पानी एक साथ पिए, 4 मिनट में फटाफट पीना है। और फिर खड़े होकर आ करो तो वो पानी अंदर से पित्त को लेकर बाहर निकाल दे।
कैसा भी यूरिक एसिड हो जाए तो 1 महीने में आपका क्लियर हो जाए, पित्त ही मट जाए। कोई महीनों तक वर्षों तक नहीं चलते हैं कोई। आप विरुद्ध आहार करो तो रोग भी जो है धीरे धीरे आराम से सेट होता है। अब पित्त प्रकृति वाले को, यूरिक एसिड वाले को दही खिला दिया तो यूरिक एसिड 12 महीने अंदर जम के फ्रिज में जो है जम के बैठेगा। है कंपल्सरी है। यूरिक एसिड हो या गाउट हो, साइटिका हो, जो भी बीमारी हो, सेरिटोन की बीमारी हो तो पित्त का प्रकोप। आप उल्टा करोगे तो नुकसान। दूधी गैस पर चढ़ेगी तो नुकसान है। दूधी को डायरेक्ट मिक्सर में करके पानी के अंदर घोल के पियो तो पित्त मिटेगा। तरीका बदल दिया, छिलके के साथ में मूंग की दाल खाई तो पित्त मिटता है, और बिना छिलके की मूंगर दाल खाई तो पित्त बढ़ता है। अब ये गुणधर्म जिसको समझ में आए उनको, अब नहीं समझ में आए तो भागशाली। आज पुनः मैंने आवती पुनः वती मोरे तो विहार करना। हमें अंधेरी नगरी में વધારે कोई ज्ञान देने फायदो नहीं है। घणो हमें दीदो तो हमें मुश्किल हो। अब यहाँ पर इसके साथ में विनय जोड़ो। विनय भी आभ्यंतर तप है। अब 50% ये नेजरा करे तो 50% ये नेजरा। इसकी टक्कावारी है और इसके नहीं है तो 100 में से 50 मार्क का पेपर तो इधर ही कट गया। उनोदरी भी सिंपल है भागशाली। हमी वाला करावा वाला पारना में 50 आइटम बनावे, पर मैंने संकल्प किया कि मेरे को 5 आइटम से ही पारना करना है। मेरे को 50 आइटम नहीं ले, मुझे 5 से ही करना है। आपका वृत्ति संक्षेप का उनोदरी का पच का अर्थ आपको अपनी तरह से देख। रस त्याग के अंदर मैं किसका त्याग कर सकता हूं, किस रस का कितने प्रमाण में मैं त्याग कर सकता हूं, ये मुझे समझना है। ये सब तप नेजरा कारक है। क्यों है ऐसा? इसके साथ आप जोड़ करके राग द्वेष करोगे 10 गुना फर्क पड़ेगा। बस बात उतनी। जिसका इतने सा आहार के साथ ही राग द्वेष, कई घरों के अंदर रोज के आहार के साथ में राग द्वेष, रोज क्लेश कसाय है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अब इसका त्याग कैसे करना? रस आदि का त्याग करके आप उसको व्रत में भाव कैसे बढ़ाओ तो नेजरा बनेगी। इधर ये आ गया। इसके साथ में व्याख्यान हो, व्याख्यान स्वाध्याय का अंग। व्याख्यान जो है ज्ञान वर्धक है, इसको स्वाध्याय में जोड़ा है। अब इसके साथ 5वां प्रकार जो जुड़ा है काय क्लेश है। इसके साथ में 6ठा प्रकार अंगोपांग संलीनता है। इधर आपको ध्यान दिया है और इधर आपको कायोत्सर्ग दिया है। अब ये कैसे आपको कर्म क्षय करा सकता है? अब आप तो वेद तो छूटी गए, लगभग स्वाध्याय ध्यान आपका जा रहा है। कौशक तो प्रतीक और थई गयो एकलो, इसके सिवाय वो भी नहीं रहता है। आप कर्म क्षय निमित्त, आप कर्म का क्षय है होना चाहिए, करना है, उसके निमित्त आप कितने कौशक करते हो? आप कौन सा कौशक करते हो? कैसे कायोत्सर्ग आप करते हो? ये जब आपका लक्ष्य नहीं होगा तो फिर आप जो है इतनी ज्यादा नेजरा नहीं कर सके। कर्म सत्ता में साथ में रहेंगे, अब कर्म क्षय होंगे नहीं साथ तो क्या फायदा होगा? अब कर्मों का क्षय करने के लक्ष्य से ही तो यहाँ पर जो है तब की व्यवस्था बैठ। कोना रोजना डेली लाइफ में देखो, 6 बाह्य में से कौन से हो रहे हैं, 6 आभ्यंतर से कौन से हो रहे हैं? बाह्य माथी 6 माथी जे 6 शायद आप जो है कौन सा कर सकते हो? कोई 1-2 करोगे।
बाह्य में से आप कौन सा करेंगे? बाह्य के अंदर आपको जो है कोई एक दो करना है, सब तो साथ नहीं कर सकेंगे आप। ख्याल आएगा मुझे पहले ही घणो समझाया, हमें कोई भाई बात रेडी है, अंधेरी नगरी में वही साहब। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर कौन कितना कर सके उस पर। अब आप इसके साथ में ये जोड़ते हो तो आपका गुणाकार नेजरा का बढ़ेगा। आप नहीं जोड़ सके तो नेजरा का गुणाकार नहीं बढ़ेगा। तो इसके अंदर नेजरा कितनी हो जाएगी? 50 में से 50 मिल जाएंगे। इसमें नेजरा कितनी होगी? इसके प्रमाण कितने मिलेंगे? दोनों में से जब तक आप टक्कावारी नहीं बना सकोगे परिणाम नहीं। किसकी टक्कावारी किसके साथ जुड़ रही है? मन वचन काया के योगों को संकुचित करना है, काय शरीर को संकुचित करना है, राग द्वेष क्लेश कसाय को संकुचित करना है। वो हो गया आपका जो है संलीनता है। भाई आपका बिस्तर बहुत बड़ा है, समझे, मुझे कितनी जगह में सोना है, मैं इधर से इधर करवट बदलूंगा, इधर खटमल आएगा या मच्छर दबेगा। फिर सुबह उठो और देखो कपड़े के ऊपर जो है मच्छर मरा हुआ दिखाई दे या खटमल मरा हुआ दिखाई दे। खटमल मरे तो 3 जीव की हिंसा, मच्छर मरे तो 4 हम जीवों को पहचानना है तो आपको रोज का पाप का हिसाब समझना, ये मुख्यता है। और जब रोज का पाप और प्रमाण आप नहीं समझ पाए तो क्या होगा? फिर वो प्रमाण किधर जाएगा? जीव विज्ञान की शिविर लगा रहे शुक्रवार से, तो जाकर के आप 3 दिन जीवों के बारे में समझोगे और समझाओ। जो आपने 4 महीने तक यहाँ जीव विचार समझाए सुना है, अब जाकर के एक एक जीव की पहचान होता है। एक एक इरिया भाई माथी पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमने जो शब्द आए तो एक एक शब्द के साथ अर्थ बैठा कर समझ सकता, एक एक शब्द के साथ अर्थ बैठा कर समझ नहीं कर पाए तो फिर आप उन जीवों की विराधना से नहीं बचे। अब ये विवेक कैसे आना चाहिए? ये विवेक लाएंगे कहां से? जीवों को ही नहीं समझो, पहचान ही नहीं सको तो कहां से जाए? दोनों बात पर ध्यान रखो। इधर ही तप तपस्या, इसमें इधर देखिए, इससे 10 गुना लाभ विनय में, इससे 100 गुना लाभ भैया बच। ध्यान में आयो? विनय करता 100 गणी વધારે नेजरा करावनारो भैया बच। એના કરતા 100 ગણીની 1000 ગણું જે છે કર્મ ક્ષય કરાવનાર સ્વાધ્યાય છે। इससे 1000 गुनी निद्रा कराने वाला ध्यान है, इससे 1000 गुनी निद्रा कराने वाला कायोत्सर्ग है। एक से एक, एक से एक, एक से एक कितना गुना प्रमाण बढ़ता है। इधर देखिए, अब इसमें क्या है? संलीनता से काय क्लेश में, इससे 100 गुना रसद त्याग में, इससे 1000 गुना इसमें, अब लास्ट में आते आते उपवास के अंदर लाख गुना आपकी निद्रा का लाभ। प्रमाण ऐसे गाड़ी चलाइए इधर से। अब आपको इसमें से कितने प्रमाण में निद्रा करनी है? दृढ़ प्रहरी ने 10 मिनट में 4 पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा की, 6 महीने का अनशन करके इतने चारों घाती कर्म क्षय करके उसी जन्म में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए। खाली तरह जो नहीं आप दृढ़ प्रहारी, एक प्रहार करके जीवों की हिंसा कर, एक प्रहार, और 4 मिनट में 4 पंचेंद्रिय मनुष्यों की हिंसा कर दी और एक गाय की भी हिंसा कर दी। लेकिन इतनी हिंसा करने के बाद भी उसी क्षण से उसने अपना कायोत्सर्ग शुरू किया और ध्यान शुरू અને અનશન કરી। આમાંથી ઉપવાસ લઈ લીધો, આની અંદરથી કાયોત્સર્ગ અને ધ્યાન લેकर के जो निद्रा की बख्शाली, नहीं तो 7वीं नरक में जाने वाला, जो न करी हो तो 7वीं नरके जाए।
गढ़ प्रहारी की बात, लेकिन करके नेजरा करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष, कितनी बड़ी बात है सोचना। આટલું કરીને જે રીતે એમને નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરીને મોક્ષે ગયા, આ વિશેષતા કેટલી મોટી રહી, નથી કરી શકતા લોકો। એક જ દાખલો બને છે, હજારોમાં એક દાખલો મુશ્किलથી બને છે। जिनके बारे में आप विशेष बात करो, ऐसे निमित्तों के अंदर अब जिनको भी कर्म क्षय जितने प्रमाण में करना है, अब कौन कितने प्रमाण में कर्म क्षय करके मोक्ष में जा सकते हैं, उनकी बात। जिनको मोक्ष में जाना है, यहाँ पर आज ये बात करें 5 पांडवों की। अब एक्चुअली 5 पांडव એટલે એમની વાત વિચારો, आपकी कितनी बड़ी सेना थे। આ 5 પાંડવો કેટલાની સાથે જાય છે? 20 કરોડની સાથે। હવે આટલી પબ્લિક, આટલા લોકો એ વખતે હતા કે કેટલા હતા, ક્યાં હતા? 20 करोड़ की संख्या। पांडव और कौरव का युद्ध आपको मालूम है, उस समय करोड़ों की सेना। अब इनका युद्ध कितना खतरनाक चला, और उस समय करोड़ों लोगों की जीव हिंसा कैसी, पंचेंद्रिय मनुष्यों का और पशु पक्षियों का वध। युद्ध में और क्या होने वाला है भाई? युद्ध में और क्या संभव क्या है? ऐसी स्थिति के अंदर युद्ध के क्षेत्र में दोनों पक्षों के अंदर करोड़ों, लेकिन अब ये युद्ध जब समाप्त हुआ, अब उसके बाद प्रायश्चित करने करते कर लिया, लेकिन अब क्या करना? तो प्रायश्चित करके अब पाप कर्म को धोना भी है। पहले एक बात समझ लो, जैन महाभारत अलग है, माजी जागजो थोड़ी बार, जैन रामायण अलग है, जैन महाभारत अलग है। उन्होंने उनके हिसाब से लिखी। काका पालिताना जाओ छो, चढ़ो छो, जमणी बाजू पगथिया चढ़ता 5 પાંડવોની કાળી મૂર્તિઓ ઊભી દેખાય છે। ખ્યાલ કોઈ ધ્યાન આપ્યું હોય જોયા, फटाफट जता आवता हो तो खबर ज ना पड़े। अब क्या है कि ये बाजू में इतिहास था, इसलिए अलग अलग छोटी छोटी देरियां बना करके इतिहास दिखाया गया। 5 પાંડવ जो थे, समझाया कि आ भूमि ऊपर आवीने अहींयाथी जे छे एमने एमना कर्म क्षय करीने मोक्ष प्राप्त करे छे। भाई युद्ध तो अब राजकाल में राजाओं के समय में हुआ, भरत और बाहुबली वच्चे युद्ध थयो, लेकिन जब उनको समझ में आ गई तो बाहुबली जी ने भी दीक्षा ली और केवल ज्ञान पाके मोक्ष में गए। 2 जना लड़नारा 12 वर्ष सुधी भरत ने बाहुबली लड़े छे। युद्ध में तो मरना ही मारना ही होता है, लेकिन फिर भी प्रायश्चित करके कैसे उन्होंने कर्म क्षय किया और कैसे मोक्ष में गए, ये सबसे बड़ी विशेषता। थई सके के ना थई सके, जब पाप करते हुए आपने इतनी तीव्रता से पाप किए, तो अब कर्म क्षय करने में इतनी तीव्रता रख, इतनी बड़ी तीव्रता से कर। काका पालिताणाનો इतिहास જોવા જઈએ ને તો એટલા બધા પ્રસંગો છે, इतिहासની तवारीखो છે, इतिहास के दिन और तिथि है, किस दिन कितने आत्मा मोक्ष में गए। પણ હવે આપણે ત્યાં શું ચૈત્રી પૂનમ ને કાર્તકી પૂનમ 2 જ મનાવવાનો રિવાજ છે। આસોની આ પૂનમ ને કોઈ સમજવા તૈયાર નથી, કેમ કે સાહેબ આંબીલની હોલી ચાલે છે એટલે હવે કાલે પારણું જ કરવાનું છે। इसके अंदर आप ये सबसे बड़ा दिन, कारण कि 20 करोड़ की इतनी बड़ी संख्या में और दूसरी किसी तिथि का आंकड़ा नहीं है। 20 करोड़ का आंकड़ा है, 17.5 करोड़ का है, 13 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का है। ये सब इतिहास जब आप समझोगे, एक स्तवन खाली चौपड़ी में जोईने तमे गाओ समझाय के नहीं तो तमने खबर पड़ी जाए।
आदेश्वर अलबेलो ने क्या लगा। अब ये स्तवत के अंदर उन्होंने वीर विजय शुभ वीर विजय ने सब आंकड़े के साथ इतिहास लिखा है। उसके अंदर इन्होंने इस बात का उल्लेख किया, कहाँ किनकी कितनी संख्या है, ये समझ करके आप चलो तब आपको ख्याल आवे। अब इतने महापुरुष, जब सोचो युद्ध हो गया और उनको पश्चाताप करना है, अब कौशल करना है, ध्यान करना है, कैसे करें। अब एक बात तो सबको मालूम है कि दीक्षा वगैरह तो मोक्षे जवातु नहीं, कंपलसरी नियम। तो ये पांचों पांडव 20 करोड़ भागशाली दीक्षा कहाँ ले, હવે ક્યારે દીક્ષા લેવા જાય। પરંતુ એના વગર મોક્ષ નથી, એ પણ હકીકત છે। યુદ્ધના મેદાનમાં લો ગમે ત્યારે લો, પણ લેવી તો પડશે। ऐसी स्थिति के अंदर जब इन्होंने दीक्षा ली, अब इनके पास सिर्फ ध्यान और कौशल दो ही बचता है। કેમ? દિવસો ઓછા છે, કર્મો વધારે છે। ઓછા દિવસોમાં વધુમાં વધુ કર્મ ખપાવવા હોય તો બીજો રસ્તો શું છે? जिस किसी को भी कम से कम दिनों के अंदर, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कर्म की निद्रा करनी हो तो ध्यान और कौशल दो संभव। હવે તમે એકાશનું બેસનું નવકારસી પોરસી કરવા જાઓ તો મેલ નહીં ખાય। હવે ઉપવાસ અને એટલા ઉપવાસની સાથે અનશન કરીને તમે કરી શકશો તો સંભવ છે, બાકી કોઈ રસ્તો નથી। બિલકુલ। મહાવીર સ્વામીના જીવનનો ઇતિહાસ ગણો તો 12.5 વર્ષના કાલની અંદર કાકા ફક્ત 349 જ પારણા છે, બાકી બધા ઉપવાસ છે। 6 થી ઓછું એક ઉપવાસ તો કર્યું નથી। બોલો સર, મહાવીર સ્વામી કેટલા અમીલ કર્યા? હોલી કેટલી કરી? હવે મહાવીર સ્વામી એ સમજે છે, એક ઓછું કરવા જઈશ તો આટલા ઓછા સમયમાં આટલા લાંબા કર્મો ખપાવી નહીં શકાય। આપણી જેમ ચાલ્યા હોત કે ભાઈ દર પર્યુષણ આવશે ત્યારે કરશો, દરેક હોલી આવશે ત્યારે હોली करशो, तो रिजल्ट कहां से आता? उनके पास 12.5 बरस का छोटा सा टाइम है। 12.5 बरस के अंदर तो इनको इतने कर्म क्षय करना ही करना है, नहीं तो कोई रास्ता ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं। अब उनको यही रास्ता था कि जितना हो सके मैक्सिमम करो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करो। એટલે એમને છેલ્લામાં છેલ્લું નાનકડું પચકાણ છઠનું રાખ, ઓછામાં ઓછું છેલ્લું પચકાણ છઠ, બસ। વધારે વધારે 180 ઉપવાસ થયા। 180 કાકા 24 ઉપવાસ। શું આપણે તો વિચાર કરીએ તો ચક્કર આવે, પરંતુ હવે આ મહાત્માઓ શું કરશે? મેં દળ પ્રહારીની વાત કરી, હમણાં 6 મહિના સુધી 180 ઉપવાસ 24 અને એકલું ध्यान અને કૌશક, બીજું કઈ નહીં। એકલું પશ્ચાતાપ અને એક પ્રાયશ્ચિતનો ભાવ, એટલે એમને 6 મહિનામાં 4 પંચેન્દ્રિય જીવોની હિંસાનો પાપનો કર્મ ધોઈને નરક ટાળીને મોક્ષે ગયા, नहीं तो कोई विकल्प नहीं। और ऐसे तो तप करके मोक्ष में जाने वाले एक नहीं सैकड़ों दृष्टांत, कई दृष्टांत है कि जिससे वो कैसे नेजरा पाके मोक्ष में। यहाँ पर आज का ही दिन कैसे आया? इनके जीवन के इस काल के अंदर आज का दिन आया। अब कब से शुरू की होगी? अनशन कब से शुरू कर दिया? कौशल कब से शुरू कर दिया? ध्यान कब से शुरू किया? आज का दिन, लास्ट दिन ऐसा आया कि आज सबके कर्म, इतिहास में ऐसा दिन दूसरा नहीं मिलेगा। एक दिन के 24 घंटे के अंदर भाग्यशाली 20 करोड़ लोगों का आयुष्य पूरा हो और सब मोक्ष में जाए।
કોઈ બીજી ગતિમાં નથી ગયા, કોઈ બીજી ત્રીજી આડીઅવળી ગતિમાં ક્યાંય નથી ગયા, एक सरखा संभव है? आप सोच, लेकिन बना इतिहास तो बना कि नहीं। कम ज्यादा संख्या वालों में भी 5 करोड़ 10 करोड़ वाले भी मोक्ष में गए तो बिल्कुल गए। तो आंख संख्या आटलो मोटो आंकड़ो पहुंचो क्या? उस समय लोग उसमें युद्ध में जुड़े। अभी देखो इजराइल के अंदर छोटे बच्चे भी युद्ध के लिए तैयार है, स्त्रियां भी युद्ध के अंदर तैयार है। इजराइल में कंपलसरी कोई पण स्त्री होय के पुरुष होय 2 વર્ષની પહેલા મિલિટરી ટ્રેનિંગ તો દરેકને લેવી જ પડે। જરૂર પડે તો આ જાઓ देश की रक्षा के, કારણ કે 1 કરોડ પણ પૂરા નથી, 98 લાખની જ વસ્તી વાળું ઇઝરાયલ चारे बाजू मुसलमान देशों से घेराયેલું છે और इन सब के बीच में रह के इसको लड़ना है, अपना अस्तित्व बचाना। आ नानकड़ू युद्ध भागशाली તમને લાગે નાનકડું, પર આજ 20 દિવસ થઈ ગયા ને જો આ વધતું વધતું આગળ જશે તો વર્લ્ડ વોર કા રૂપ લે તો કાલે ત્યાં સામે કોઈ ખાડામાં પથ્થરો નાખે તો છાટા અહીંયા ઉડે। આજનું ચંદ્ર ગ્રહણ એના માટે ખતરનાક ભવિષ્યવાણી કરી રહ્યું છે। चंद्र ग्रहण आज का जो है ये भी चारों तरफ ऐसी असर दिखा, आ बधा सारा संकेतो नहीं, शुभ संकेत नहीं, घना अशुभ संकेतो है। अब आप बीजू कौन भाई, धर्म के सिवाय आपका रक्षा करने वाला कौन? बोलो, हवे धर्म सिवाय कौन कोने आ कोरोना काल गयो, कोई हगा बापे आवी शक्या? बोलो, मर्दू उठाड़वाय कोई आयो? शमशान यात्रा काढ़ी शक्या? शू करी शक्या बादशाह? ऐसी परिस्थिति के अंदर काल, अब आजकल बॉम्ब ऐसे बने हैं कि एक बॉम्ब गिरे तो लाखों लोग। क्या इजराइल हमासनी अंदर जैसे 1 घंटा खाली नहीं जाता है कि बॉम्ब नहीं। पण हवे ए लोकोना पापो एवा भराणा छे, एटला पाप उभराणा छे भागशाली, छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ते। और इस समाज के अंदर, इस लोगों के अंदर तो ऐसा हुआ है कि जिसकी कल्पना। આજની તારીખમાં બધાય ચેતવા જેવું છે। 10 रुपए की खरीदी करो तो भी देखकर खरीदी करो। सामने हिंदू है तो जरूर खरीदी करो। शाक भाजी लो तो 2 રૂપિયા અહીંયા સસ્તું મળે છે, ત્યાં નહીં જતા। તમને વ્યવસ્થિત કરે આ લોકો થૂકી કરીને પણ શાકભાજી વેચે, મીઠાઈ વસ્તુ ખાવાના ફરસાણ વગેરે અંદર થૂકી કરીને વેચે। घणा लोगों के साहब अमे तो जे छे त्यांथी खजूर मंगावीए छे, अमे पैसादार करोड़पति छे। अरे भाई, कच्छना देशी खजूर खाओ तमे, बजार त्यांथी परदेशना खजूर मंगावा माटे ए लोको थूकीने आपे छे। शुं काम एवो मोह राखो छो? आपणा देशनी देशी वस्तुनो आग्रह राखो। अने बीजी वात के हवे तमे बधाने समझावो, ऑनलाइन खरीदी नहीं करो। आप दुकान में जाइए, बाजार में जाइए, आपको जो पसंद है वहां से देख के खरीदी करो। अपना दुकानदारों सक्षम थाय अने खाली जे छे मल्टीनेशनल कंपनीओ ज करोड़पति बनशे तो काले तमारी दुकानो बंद थई जशे। आ बधो परदेशी लोकोनो व्यवहार जे आव्यो छे, ऑनलाइन खरीदी, घरे बैठा मंगावी लो ने कोण माथा, घरे बैठा एक बटन दबावो आवी जाए। तमे दुकान में जशो, तमने 10 वेरायटी जोवानो चांस मळे, साचुं खोटुं समजवानो चांस मळे, बार्गेनिंग करीने कदाच 50 ना 40 कराववानो चांस मळे। त्यारे तमे ऑनलाइन में कई करी लो, कई ना बदले कई आवी जाए, कई ना बदले गमे ते पधरावे तमारे लेवुं ज पड़े। अने ए लोको केटलुं कमाए, तमारा घरे आपवा आवे ए कमाए तो आपे छे, एमने एम तो कई नथी थतुं। तो ये अक्कल हमारी कहाँ चली गई? अने कोई पण जे छे कालनु आजे भेगुं नहीं खरीद, शाकभाजी रोज आवे छे, रोज घर में लावीने फ्रीज में भरी राखવું, ये समझदारी नहीं है। बस पहले समझो, आ 20 करोड़ पांडवों, अब एक बात तो निश्चित है कि सबके
આઠો કર્મ ખપશે તો જ બનશે. આ જે છે દરેકનો આત્મા છે, આ બધાના 8 કર્મો અંદર છે. પહેલા સૌથી પહેલું કયું કર્મ ખપે છે? મૌનીય કર્મ ખપે છે. પહેલા મૌનીય કર્મ જશે એટલે વિતરાગતા આવશે. જેવી વિતરાગતા અહીંયા આવી ગઈ અને મૌનીય કર્મ અક્ષય થઈ ગયો, तब जाकर के केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा. तब जाके अंतराय कर्म खपेगा तो अनंत वीर्य पूर्ण. अब इसमें तो आधा काम हुआ है. આ 20 કરોડ મહાત્માઓ જે રીતે પોતાની રીતે કાવસક ધ્યાનમાં જે રીતે રહ્યા છે, ક્યારે કોના કયા કર્મ કેટલા કર્મ ખપ્યા, ક્યારે કોને કેટલી નિજરા થઈ, કોઈને ખબર ન પડી. કારણ કે હવે અપાरम बोसरामी કરીને कावसक में तो आपको केवल ज्ञान भी हो जाए तो भी कावसक तो पारना नहीं है. अब आपको कुछ भी नहीं बोलना है. क्या करेंगे आप? अब ऐसी स्थिति में आप क्या करो? જેમને જ્યારે કેવલ જ્ઞાન થયું ત્યારે થયું. હવે જ્યાં સુધી આયુષ્ય પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી અપાरम बोसरामी કરીને कावसकમાં જ. एक बार अनशन करके उन्होंने ये निर्धारण कर लिया है, तो इसमें केवल ज्ञान प्राप्त होने से छूट नहीं रखी कि अबे आपने छूटा और केवल ज्ञान हो गया तो पता है कि आयुष्य कब पूरा होने वाला. सामने ख्याल आ गया कि आयुष्य है बचा ही कितना है. अब आयुष्य इतना ही बचा है कि आते आते इस पूनम को पूरा ही होने वाला. अब 5-10 दिन के लिए केवल ज्ञान हो गया तो भी कावसक पार के व्यवहार में आके फायदा क्या है? क्या करना है वो भी समझ गए. तुरंत सामने से ही उन्होंने अपनी तरह से अनशन का पछाड़ नहीं किया. पर ये एक दिन आसो की पूनम आते आते इधर से ये भी चारों घाती अघाती कर्म नाम गोत्र वेदनीय आयुष्य लास्ट में ये भी पूरा हो गया. अब 8 कर्म जैसे क्षय हो गए कि आत्मा सीधे मोक्ष में जाए. अब सुबह सूर्योदय हुआ 6 बजे 7 बजे 8 बजे 10 बजे 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख जितने जितने जिनका आयुष्य पूरा होता गया शरीर छोड़ के मोक्ष में जाते. જેનું આયુષ્ય જે રીતે પૂરું થાય. लेकिन कितने सजाग होकर जागृत रहे काका. તમે ઉભા કાવસક કરો ને જોખું આવે તો બોલો. આ તો આરામથી કાકા સાય कुर्सी पर बैठा बैठा झोंकू आवे. बोला तो दिवसों थी उभा છે. एक एक महीने तक કાવસક ઉભા ને ઉભા જ રહેવા. પાછા ઉપવાસ તો છે, અનશન તો છે જ. કેમ ભાઈ એમનું શરીર કઈ લોખંડનું છે? મન કઈ લોખંડનું છે? મનોબળની તીવ્રતા કેટલી છે કે સરસ રીતે એમને પોતાની કર્મ નિજરા કરી અને આટલા કર્મ ખપાવતા ખપાવતા આ બધા જ આત્માઓ જે રીતે મોક્ષને પામ્યા. આપણને ખાલી જે છે એટલું જ ખ્યાલ છે. लेकिन अब सद्भाव और श्रद्धा के भाव से जब आप देखो कैसे कर्मों का क्षय हो सकता. हम भी जानते हैं कि कर्म बनते हैं तब बहुत भारी कर्म घना भारी कर्म बनता है. लेकिन जब निजरा भी होती है तो शायद 10 गुनी ज्यादा भी कर सकते. निजरा कारक उपाय आपके हाथ में है. તમારા હાથમાં સરસ મજાનું તત્વ હોય તો તમે ધારો એટલી નિજરા કરીશ. ધારો એટલી નિજરા કરીશ. કરતા આવડવી જોઈએ. જો કરતા આવડે અને આપણે કરી શકીએ તો રિઝલ્ટ ઘણું સારું આવે છે. આજે ભાગશાलीओं एक तरफ ये आइमिल की ओली पूरी हो रही है, इधर आप एक तरफ से जो है तो आप धर्म की आराधना कर रहे हो. खाली 9 દિવસના આમિલ જ પૂરા થાય છે રે. બાકી બધું તો કઈ પૂરું થઈ જતું નથી. ज्ञान दर्शन चारित्र तब रोज है. कल जो है बोलो
એમના મોદી પરિવારના ભાગશાળી એમના ભાઈ શું નામ છે? રજનીકાંત ભાઈ મોદી. આજે વિચાર કરો કે કેટલી 75 ની ઉંમરે પહોંચ્યા છે અને દર પૂનમે શંખેશ્વર જઈને જાત્રા કરીને આવે છે. બહુ સારી વાત છે. 33 વર્ષથી અખંડ રીતે શંખેશ્વરની જાત્રા કાયમી કરે છે. 75 ની ઉંમરે તો લોકો ઘરમાંથી એકલા બહાર નથી જતા અને એ રોજ જાત્રા કરી આવે છે. આજે ગયા છે ત્યાં આગળ શંખેશ્વર, કાલે સવારે પહોંચશે. એમને એમ થાય છે કે ચાલો ભાવના છે 400 આજની પૂરી થઈ રહી છે. 400 ની પૂરી થાય છે. કાલે સકલ સંઘને આમંત્રણ આપ્યું છે. ચતુર્વિધ સંઘ બધા એમના ઘરે લાભ આપ્યો. 9:30 વાગે અહીંયા ભાગશાળી, પછી તમારે આવીને 8 વાગે પારણા છે. 9:30 સુધી પારણા પૂરા થઈ જાય એટલે નીચે જે છે ગર્ભ સંસ્કારની શિબિર રાખી છે. गर्भ संस्कार शिविर आज की तारीख के अंदर बहुत आवश्यक हो गई। भविष्य की संतान हमारी जैसी हो रही है, कुछ संतानें रोग बीमारियों से ग्रस्त है। आज थी 50 वर्ष पहला नाना छोकरामां चश्माનું પ્રમાણ જેટલું નહોતું એના કરતા આજે નાના બાળકોની અંદર ચશ્માનું પ્રમાણ 10 ગણું વધી ગયું છે. રોગ બીમારીઓનું પ્રમાણ વધી ગયું છે. हेल्दी અને સ્વસ્થ બાળકો નથી જન્મતા। अब इसका कारण भी तो है, कुछ न कुछ तो है संदेह। तो इसके लिए एक संस्था है कि जो आचार्य भगवान राजहंस सूरी महाराज द्वारा आज थोड़ा सक्रिय थया छे। डॉक्टर अभयभाई दोशी वगैरह छे एमां जोड़ायेला छे। ए बधा संस्थावाला अहींया आवशे। एमां दरेके खास समजવું, જેમને 20 થી 40 વર્ષ સુધીની ઉંમરના હોય, કાલે જેને લગ્ન કરવાના હોય કે લગ્ન થઈ ગયા હોય, એમને પણ ખાસ કરીને માર્ગદર્શન મેળવવા જેવું છે। એક પ્રોપર ગાઈડન્સ આપશે, સમજાવશે। ઘરમાં બહુ હોય તો મોકલજો, સાસુ ઘરે રહે તો સારું એક દિવસ માટે। તમે કહો તો કાલે એક દિવસ પ્રભાવના ન રાખીએ સમજાય તો બીજા કોઈને ચાન્સ મળે અને आप समझ करके समझा भी सको, सिखा भी सको। उन्होंने आयोजन किया है, हमने कोई ऐसा आयोजन नहीं किया, उनकी तरफ से है। तो एक संघनी अंदर खास एमनी इच्छा छे, परिवार माथी मोकलजो, बीजाने मैसेज आप जरा आवी सके। भागशाली होली पूरी हो गई, अब दीपावली के दिन आएंगे। आपने दरेक जण विचार करो, पोताना घरमांथी एक नवुं कपड़ुं अने 2 जूना कपड़ा, एक नवी साड़ी, और पुराने कोई कपड़े फटे हुए नहीं होने चाहिए। अच्छे साफ सुथरे धोकर इस्त्री करके तो आपने छेक साधर्मिक परिवारों ने मोकलावी शकीए। पहले एक सप्ताह भर सबको चांस है कि इकट्ठे कर लो। एक वासण, एक थाली, एक बाटकी, एक ग्लास आपो। कोईना घरमांथी एक तपेलू आपो। कोईने इच्छा थाय ए वस्तु आपवी, पण हाव जे छे तपेलू फूटेलू नहीं आपता। हेलो, अंधेरी वाला ने इज्जत जाए वो नहीं करता। एक साथ में सप्ताह भर इकट्ठा करो, उसके बाद में समाज माथी संघ माथी 10 जना भेगा थई जाते जईने आपी आवे। अनाज पाणी जेने जे आपवू होय, भाई मारे 5 किलो घऊं आपवा छे, मारे 5 किलो चोखा आपवा छे, मारे 5 किलो मग आपवा छे, जेने जे इच्छा होय भेगा करो। तमे छोकराओने फटाका फोड़वामां न आपता, छोकराओने संस्कार आपो के आपणे आ वखते आमां साधर्मिकनुं पुण्य लईए। आखुं बधुं ज आपणे करीए। मीठाई न खाता, मीठाईना 800 रुपया किलोना बचे तो भागशाली कईक जईने 1 किलो आपणे अनाज एमना घरे पहोंचाडो। भागशाली धोळा दिवसे जे छे आपणने मोंघवारीना तारा देखाय छे, तो बीजा घणा घरोनी अंदर धोळा दिवसे अंधारुं होय छे। तो ये आपको प्रयत्न करना है। माजी एक साड़ी, वधारे नहीं, 2 नहीं कहिए तमने, परंतु सारी मजानी आपने तीजी बहनों कोई पहरी सके
કોઈના છોકરાઓ પહેરી શકે, કોઈના પુરુષો કે યુવકો યુવતીઓ પહેરી શકે, પછી તમે લાવીને પેલા ફાટેલા તૂટેલા કચરો ભેગો કરશો તો ભાગશાળી મુશ્કેલી થશે. જેને આપવું હોય પોતે જે આપતા હોય યાદી બનાવીને લિસ્ટ આપજો. આટલા કિલો ઘઉં આપું છું, આટલા કિલો ચોખા આપું છું, આટલા કિલો કઠોળ આપું છું, જે કપડાં અને વાસણ તમારી યાદી તમારા હાથે હોય એ ત્યાં પહોંચે અને જે તમારા સમાજમાંથી 10 જણા ભેગા થઈને જઈને પહોંચાડવા. ન હોય તો આપણે એમને કહેશું, અહીંયા આવીને હાથોહાથ લઈ જશે. સંસ્થા વાળા પણ આવશે, એ પણ લઈ જશે. એટલે આપણે એક અઠવાડિયું હાથમાંથી ભેગું કરવા માટે પહેલા ભેગું કરશો અને પછી આપણા કોઈ છોકરાઓ ફોડે નહીં, ફટાકડા ન ફોડે એ ધ્યાન રાખજો બધા. ચાલો ભાગશાળી ઓલી પૂરી થાય છે. કાલથી જેને રસ રુચિ હોય તો જ પધારજો ભાગશાળી, બધાને આગ્રહ નથી. સૂર્યોગે અબતન પચકાય તેવી પ્યારન ચોય પ્યાર સંસાગર મારી તમ સબસા દેણ પાણહાર પોરસી સાર પોરસી સબસા દેગણ માનસ લેવનારણ છે બહુ લેણવા સિદ્ધેણવા વો સિરે આપેલ કાષ્ટ બેસુ ગય સર તો કારસિમ પોરસિમ સાર પોરસિમ સૂર્યોગે પુરી મોટી સંબચકાય ગય સર ચોવ્ય પ્યારન તુય પ્યાર સંસાગર મતનમ સબસા દેગણ આયમ વિલમ પચકાય વિગમ સાગરમ લેવાલેમ ઘેત સુખે થોડી વારનેમ સવસ્વા દેગણ એકાષ્ટમ વ્યાષ્ટમ પચકાય દિવ્યમ પ્યારમ સુગમ સાગર નાપનમ ગુરુ ઉઠાણ વારિતમ સબસ્વા દેગણ પાનસ લેવનારણ છે બહુ લેણવા સિદ્ધેણવા વસે સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ